الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين दर दिलम आईना बे जौहरस्त, मेरा आईना जो है, मेरा दिल जो है, ये बेचमक है। वर्ब हरफम गैर कुरान मुजमरस्त, अगर इसमें कुरान के बगैर और कुछ होगा कल कयामत के दिन। पर्दे नामूस फिक्रम चाकुन, ए अल्लाह आप मेरे फिक्र की धज्जा उड़ा देना। ए क़यामा राजी खारम पाक तू, इस कांटे को अपने शहर से पाक करना। रोज महशर खार व रुस्वा कुन मरा, कयामत में मुझे रुस्वा कर देना। ये अल्लामा इकबाल की बात है कि मुझे रुस्वा कयामत में करना। बेनसीबम अज बोसे पाकुन मरा, और मुझे अपने पांव जो है, अपने पैर जो है, उनका बोसा मुझे नसीब नहीं फरमाना। To praise the Shafi Mashar Saki Kausar Rahmatan lil Alameen. I humbly invite Hasib from 11th. नहीं है कोई दुनिया में हमारा यार रसूल अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में हमारा यार रसूल अल्लाह, हमारा यार रसूल अल्लाह। पन्ने बापत अजक नो तकदीर लेख वल बेह में सत आज अस पुत कालस साम हेमो, वल बेह में सत आज अस पुत कालस साम हेमो। क्या हरियत क्या जीनत, जा बजा तफसीर लेख। मिस्टर रियासत प्लीज। परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में। गिरगिज का जहां और है, शाहीन का जहां और। Respected HOI Mr. Farooq Ahmed Wani Sahab, respected honorable guests, respected SMDC members, respected colleagues, my dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A very good morning to all of you. First of all, I am highly thankful to Allah, the Almighty, who has given us courage, the potential to organize this felicitation ceremony in our institution. Today is a proud moment for all of us at HHS Noorpura as we gather to felicitate our NEET 2025 qualifiers and our board exam achievers of class 10th, 11th and 12th. Please have a big loud of applause for these students. Dear students, Dr. Tausif Ahmed Ganai Sahab has recently qualified the toughest examination, UPSC examination, IAS. Please have a big round of applause.
Mir Sahab. Please have a big round of applause for our LCP Sahab. Dear students, we are proud that both of them, namely Dr. Tausif Ahmad Ganai Sahab and Professor A.J. Ahangar, are the alumni of this institution and an inspiration for our students. Please have a big round of applause. Dear students, let me share two brief examples. The first is the APJ Abul Kalam Azad. He came from a humble background, faced hardships, and yet through discipline and determination, rose to become the India's greatest scientist and the President of India. As he beautifully said, dream, dream, dream. Dreams transform into thoughts and thoughts transform into action. Riyasar, they say the IS is a mountain, and today we celebrate the man who reached the summit. Huge congratulations once again to our very own Tausif Ahmad Ganai. Dr. Tausif has shown us that with the right focus, no dream is too big. Cheers to our new officer. You have made this institution proudest place in the district. Thank you. Respected Principal Sir, dedicated teaching and non-teaching staff, dear special guests, and my dear friends, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself, Adina Mushtaq from 12th Standard. Today, I stand before you to speak on a very important topic, turning failures into stepping stones. Dear friends, failure is something we all fear. हम सब कभी ना कभी लाइफ में गिरते हैं, but the real question is, do we stay down or do we rise again stronger? Failure is not the end of the journey. It is the beginning of success. As a great scientist, Albert Einstein once said, failure is success in progress. Whenever we fail, we learn something valuable. हर नाकामी हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है. It teaches us patience, hard work, and resilience. Without failure, success would have no meaning. Let me remind you of a powerful quote by Nelson Mandela: I never lose. I either win or learn. This means failure is just another form of learning. Friends, history is full of examples of people who turned their failures into stepping stones. Thomas Edison failed thousands of times before inventing the light bulb. बदलते ज़माने में जिसने बदलना नहीं सीखा, गिरदिशे अयाम डालते हैं उसको खतरे में. Mir pjusri waqt yar, yelba yetso kolas manjat, daisas in charge to usus, taas pjusri waqt yar. Dr. Sylvia, yetnas, medias pjos, emistias yad pjovan, but usus yetnas, as kutnas votos, isho palanas sepas. It is a matter of great, immeasurable inspiration for us to know that such accomplished personalities have once been the student of this very school which we are studying in today. यहाँ पर तौसीफ सर ने एक बात कही थी कि अगर आपको कुछ लाइफ में ग्रेट करना है तो मीडियोकर एफर्ट्स नहीं चलेंगे. इस पे मुझे अपने एक टीचर की बात याद आई. मैं 11th में पढ़ रहा था और मुझे 11th तक लग रहा था कि आई एम द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट आई हैव सीन. मैं स्कूल में था, मैं वहाँ पर भी टॉप करता था और मुझे लग रहा था कि अगर मैं मीडियोकर एफर्ट्स भी डालूंगा आई विल क्रैक नीट एग्जामिनेशन और मैं टॉप करूँगा. लेकिन जब मैं 11th में आया, आई सॉ द कंपटीशन एंड आई थॉट अदरवाइज. मैं अपने फिजिक्स टीचर के पास गया और मैंने उससे पूछा कि सर मैं गलती कहाँ पर कर रहा हूँ. और उसने बोला
कि आई नो यू आर ए ब्राइट स्टूडेंट और ये तुम्हें भी पता है, लेकिन व्हाट यू आर लैकिंग इन इज कि तुम्हारे जो सिटिंग आवर्स है तुम पढ़ते कम हो। उसने बोला कि तुम्हें लग रहा है कि यू आर ए ग्रेट स्टूडेंट बट देयर आर ग्रेटर स्टूडेंट्स देन यू इन दिस कंट्री, और वो आपसे कहीं ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। इस कंट्री में आपसे भी कहीं ज्यादा ग्रेट स्टूडेंट्स हैं और वो आपसे 10 times 1000 times मेहनत कर रहे हैं। डू यू थिंक यू स्टैंड ए चांस इन फ्रंट ऑफ देम? और मैंने अपना सर नीचे रखा और मैंने बोला नहीं। एंड दैट वाज द मोमेंट जब मुझे रियलाइज हुआ कि ओनली इंटेलिजेंस इज नॉट व्हाट यू नीड, हार्ड वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट। खिले हैं फूल ऐसे लाजवाब जिनकी अजमत जिनकी खुशबू से मुअत्तर हर दरो दीवार है। मिस्टर शफी सर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिम तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। इससे पहले कि मैं अपने जो मौजू मुझे दिया गया है इस पर मैं आगे बढ़ूँ, मैं यहाँ पे बैठे यहाँ पे आए अपने मेहमानी खुसूसी डॉक्टर तौसीफ अहमद की खिदमत में शेर अर्ज करना चाहूँगा। उड़ने दो परिंदों को आज़ाद फिजाओं में गालिब, उड़ने दो परिंदों को आज़ाद फिजाओं में गालिब, जो तेरे अपने होंगे लौट आएंगे किसी रोज। सुकून इलाके में अब भी अपनी शान मान बरकरार रखे हुए है। इलाके में इतनी सारी निजी इदारों और हालिया सालों में 3 सरकारी स्कूलों के अपग्रेड होने के बावजूद भी अपनी मरकजी और मुमताज हैसियत बरकरार रखे हुए है। जहां सरकारी स्कूलों में तलबा की तादाद बहुत कम या न होने के बराबर है, वहीं हमारे स्कूल में ये तादाद इस साल तकरीबन 500 के करीब है। यानी हमारे स्कूल में इस साल अब भी इतने ऐसे हालात होने के बावजूद भी इस वक्त हमारे स्कूल में लगभग 500 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। इन तलबा की तालीमी तकाज़े जो है इनको पूरा करने के लिए तजुर्बाकार और आला तालीम याफ्ता उस्तादिज़ा का एक मुनफरिद टीम मौजूद है। ये इदारा बखूबी सालाना बोर्ड नताइज और जो नीट नताइज देखकर ये कहा जा सकता है कि ये इदारा बखूबी अपना काम अंजाम दे रहा है। इस साल बोर्ड नताइज जो आए हैं उसमें हमारे यहाँ 11वीं जमात में 85% रिजल्ट आया है, 12वीं में 75% आया है और मैट्रिक में 90% रिजल्ट आया है। इसके अलावा इस साल जो नीट एग्जाम यहाँ पे हो रहा है, उस नीट में हमारे स्कूल से वाबस्ता 4 बच्चे हैं जिन्होंने इस नीट इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। Today, it is not just a hill station celebration. It is the celebration of dreams that refuse to break. We are deeply honored to welcome among us the one and only from district Pulwama, the first time who cracked the toughest examination by the name IAS, Indian Administrative Service Examination. And the proud moment for all we people by being the proud alumni of this very institution. So the message which I want to convey to you people, that if you really want to reinvent yourselves, if you really want to reshape yourselves, if you really want to redirect yourselves, if you really want to rediscover yourselves, then the first condition for that very thing is never bunk your class. When the same question was put before the world scholars, world philosophers,
what truly differentiates success from failure? And the answer which came out from the philosophers, a big no. It is not intelligence. It is not talent. It is not hard work. It is not luck. But it is actually the resilience. Resilience is the courage that we should bounce back when life pushes you down. It is the silent strength that whispers in our ears, try once more, एक बार फिर. When it appears that everything, we have lost almost everything. तो खाक में मिल आग में जल, जब खिश्त बने तब काम चले, इन खाम दिलों के उनसर पर बुनियाद न रखता अमीर न कर. प्लीज वेलकम मिस्टर मुश्ताक साहब. हमारे प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल नूरपुरा तौसीफ अहमद गनाई साहब, जिन्होंने रिसेंटली IAS क्वालिफाई किया, हमारे एक्स प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल का स्टाफ और जो यहाँ पे सिविल सोसाइटी से मुअज़्ज़ज़ शहरी आए हुए हैं और जो यहाँ पे मुखातिब हमारे बच्चे हैं, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. कि आप थोड़ा सिट्रस अपने दिमाग को देके ये जानने और परखने की कोशिश करें कि आज का ये दिन हमारे स्कूल के स्टाफ ने क्यों तरतीब दिया है, इसके मुनाकिद करने का मकसद क्या है. अगर आप थोड़ा अपने जहन पे दबाव डालेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये महफिलें और ये मजालिस मुनाकिद करने का मकसद सिर्फ एक होता है, वो ये कि ये चाहते हैं कि हमारे पास जो बच्चे हैं इनको कुछ ऐसा दिखाएं जिससे ये इंस्पायर हो जाएं. इंस्पायर क्यों होना होता है? लाइफ की जो स्ट्रगल है ना, इस स्ट्रगल में दुनिया की कोई जगह, कोई स्टेटस, कोई पोजीशन आपको ऑर्डिनरीली हासिल नहीं होती. आप खुद सोते रहेंगे तो आप उठेंगे तो आपको ये एग्जाम भी पास हुआ होगा, आपका मतलब स्टेटस भी मिला होगा, आपने और भी किया होगा. दुनिया में जो भी कोई चीज मिलती है वो स्ट्रगल से मिलती है, मेहनत से मिलती है. और आप लोगों को यह दिखाने के लिए कि भाई इस इंस्टीट्यूशन ने भी ऐसे बहुत से लोग पैदा किए हैं जो हमारी ही तरह क्लासेस में बैठते थे, सामने बैठते थे, दिन भर लेक्चर सुनते थे, यही माहौल, यही स्कूल बिल्डिंग, यही डेस्क, यही फर्नीचर इस्तेमाल करते थे, लेकिन ऐसे मुकाम पे पहुंचते, ऐसा मकाम उन्होंने सोसाइटी में हासिल किया कि अब हम लोग रशिद कर रहे हैं. मैं अपनी बात करूंगा तो मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूं, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा हूं, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा हूं. कोई प्राइवेट स्कूल मेरी किस्मत में नहीं था. इस टाइम को अगर आप प्रॉपरली इन्वेस्ट करो, आप समझो कि आप जिंदगी भर आराम कर सकते हो और जिंदगी भर एक अच्छा खासा स्टेटस हासिल करके बैठ सकते हो फिर. लेकिन अगर यही 4 साल, यही 2 साल आपने जाया कर दिए तो अल्लाह बचाए कि आपको एक कीमती वक्त जाया हो जाता है. फिर भी मैं कहूंगा वो एंड ऑफ द गेम नहीं है. दैट इज नॉट द एंड ऑफ द गेम. हर एक टाइम पे सुधरा जा सकता है. जो भी टाइम आपको लगेगा कि मुझे आज से सुधरना चाहिए, आज से कंसंट्रेट करना चाहिए, आज से पढ़ना चाहिए,
तो वो आज ही से अपने आप को फायदे में डाल सकता है। आप सब बच्चों के लिए मैं ये कहूंगा कि भाई ये हमें भी लगता था पहले कि शायद शिववासा, ये डीसी, ये एसी, ये एसएसपी, ये कोई अलग दुनिया के लोग होते हैं। ये अलग दुनिया के लोग नहीं होते। ये इन्होंने बिल्कुल आप ही की तरह क्लासेस में मतलब वही एटमॉस्फेयर इन्होंने देखा हुआ होता है। लेकिन क्या करते हैं ये लोग, ये कंसंट्रेट करते हैं, अपने गोल पे फोकस करते हैं। देखिए, अगर आप अपने गोल पे फोकस करेंगे ना, फोकस दिमाग में रखा मुझे ये करना है, तो दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको वो चीज हासिल करने से रोक सकती है। जो मैं समझता हूं वो यही है कि हम लोगों में एक्सपोजर की कमी होती है। हमें पता ही नहीं होता करना क्या है, नहीं पता होता है, पता ही नहीं होता करना क्या है, मेरे लिए क्या है अच्छा, और मेरी स्ट्रेंथ किस सब्जेक्ट में है। आपको जिस सब्जेक्ट में आपको कंफर्टेबल लगता है ना, अपना आप स्ट्रेंथ लगती है उसमें आपको है, तो वही ले लीजिए, कंफर्टेबल सब्जेक्ट ले लीजिए, इसमें कोई कंपल्सन नहीं होता। और जब आप वो सब्जेक्ट ले लोगे, फिर उस सब्जेक्ट में देखो, आजकल के जमाने में, आज ग्लोबल विलेज हम बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है। जो लड़का अमेरिका में पढ़ता है ना, यूएसए में या ब्रिटेन में पढ़ता है या जापान में पढ़ता है, आप यहां पढ़ते हो, मुझे लगता है कि रिसोर्सेज में आप नूरपुरा में की हायर सेकेंडरी का बच्चा जो बैठा है यहाँ पे, उसमें और अमेरिका या जापान के बच्चे में कोई फर्क है। आपको ये पता होना चाहिए कि केएस और आईएएस के लिए एलिजिबिलिटी में कोई ग्रेजुएशन के बाद परसेंटेज नहीं चाहिए होती है। ये आपको पता है? नो परसेंटेज इज रिक्वायर्ड, ओनली पासिंग, सिंपल पास, ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन में, चाहे इसने उर्दू में ग्रेजुएशन किया, चाहे उसने एमबीबीएस किया, चाहे बीटीएस किया, चाहे इंजीनियरिंग किया, ऑल आर एलिजिबल और ऑल आर ऑन द सेम फ्रेम, एक ही फ्रेम पे हैं। ये कहीं अपने को आप ये भी करते हो ना कि इनके साइंस स्टूडेंट गोस आर्ट्स, फिर आर्ट्स वाला देवरवाना सुनवाना ही मैं क्या सब्जेक्ट मंशा ये वो बात नहीं है। एवरी सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है, एक्सेल इन दैट सब्जेक्ट। Professor Dr. A.G. Ahangar, the former director of SIKIMS Srinagar. Professor Ahangar achieved countless milestones in his tenure. Some of them are head of Department Cardiothoracic Surgery at SIKIMS from 1993 to 2012. Almost 2 decades he has served for that. He has been the director of SIKIMS and ex-officer secretary to the government with exemplary performance post-way to 2016 civilian unrest and post-corona COVID-19. He has been the member of APEX Advisory Committee for treatment protocols in newly established AIIMS in different states of India. Clinical profile and outcome of the double value replacement at SIKIMS, a 10-year study. The towering figure, Dr. A.G. Ahangar, is a resident of Midura, that's in our locality. Luckily, the student of this very prestigious institution as well. The alumni score of the achievements are so high that we can't have this time. We have short of words and the short of time to express that. I feel highly honored to invite this iconic statuette, Professor Dr. A.G. Ahangar, the former director of SIKIMS, with this verse, विरासत से तय न होंगे मुकद्दर के फासले, विरासत से तय न होंगे मुकद्दर के फासले, उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। Please welcome the former director of SIKIMS, Dr. Professor A.G. Ahangar, sir, please. Distinguished parents whose children are here in my dream institution, erstwhile Government High School Nurpura, now Government Higher Secondary School Nurpura. Beloved students, boys, girls, the lovely birds who are going to bloom into beautiful flowers and ultimately a wonderful fruit tomorrow. Additionally,
Additional Deputy Commissioner Avantipura, Janab Mushtaq Saab, was just left. I didn't hear him, but I've heard a lot about him. The star of this function today, Mr. Tawseef Saab, who was recently qualified IAS, the most prestigious examination in the country, where everybody would like to aspire and go into the stream, barring a few exceptions, like Dr. Anger. Former Principal Aftab Saab, SMDC members of the school, Janab Fayaz Ahmed Mir Saab, current Principal, other distinguished faculty members, teachers, NEET qualifiers, and all other aspirants of various professional services that they dream to go into. A very good afternoon. Assalamu alaikum. I tread the path on the earlier road towards the gate of the school that I studied in, but I was led in a different direction. I was on the right direction, I was led on the left direction to enter this new premises. The remnants of the building here were 3 rooms for matric section A, B and C that I studied in, but we have built it. I have borne the bricks and the mortar and everything else for this building at that time. And I've never forgotten this building. I've never forgotten those days when we built it. We had a small school house here which was outliving its capacity to bear the burden. Because this school was catering to an entire area of huge population of so many, probably 12, 20 odd villages around. The next part that I want to go to is to the teachers. There have been great teachers in this school who taught me, not one but all of them. I salute all of those teachers whom I can't remember or whom I don't see today around, but there are a few who still are in my mind. There are teachers like I would like to remember. The principal at that point of time was Janab Anayatullah Saab from Srinagar. Some distinguished teachers, particularly in science field, Mr. Jagdish Singh Ji from Rajpura, the man who transformed me and my life and my journey to becoming the doctor. Whatever professional life or whatever corporate life, whatever business life or whatever phase of life you want to enter into, you need to work hard and you need to be consistent. You need to have a proper integrity. You need to have your honesty. You need to have the sincerity of the purpose with you all the time. You need to be focused towards your dream. It is the action that matters, the action that you take. Vision without action is just a daydream. But action with vision is what can make you transform into dreams. Otherwise, vision without action would be a nightmare. My advice to all the youngsters, the children here, the boys, girls, who are in a transformative phase, your past childhood, you're in the adolescence this time, you're going to the adulthood. Your responsibilities are not only in terms of the studies, but your responsibilities are to face the tomorrow's world and the different challenges. And you have to set those challenges for yourself. The way you set your challenge for yourself
you can have your own success stories. You have to have your family life tomorrow. You have to earn for the families. You will pass through various decades of life, and you will be their advisors tomorrow. So all these phases of life, every human being, any animal life on this planet goes through different phases of evolution. All of you people reading Charles Darwin and other things in biology have seen what transforms life over a period of time. बागात फलरावई नूरात चमकोई बागात फलरावई नूरात चमकोई which कित पाट प्रजलावई नूर पर सको सोनी which could part Brazil Noor Sukul Soni Athlol gets Baroni Noor Sukul Soni Vasata Demik Khashroi Khun Sait Sagnawi Vasata demik khashroy khun sat sagnoy posha mushkani noor sukul sani posha mushkani noor sukul sani athlol gets Noor sukul sani gat maza gash puri nawalubuni gat maza gash puri nawachlubuni aftab chamkoni noor आफ्ताब चमकोनी नूर सुकुल सोनी अथलोल गच बरोनी नूर सुकुल सोनी पूछा where he had laid the seeds of knowledge and the ambition were first sown with a strong desire to grow and excel. He continued his schooling at Azad Public School, Avantipura, shaping his talent. Then he completed his higher secondary education from Government Higher Secondary School, Noorpura. That is this prestigious institution in which we are here. This institution further refined his academic strength and vision for the future. Driven by a deep passion for the science and the service, he went to pursue bachelors of veterinary sciences and animal husbandry for the coast Kashmir. His journey reflects not just academic achievement, but a story of perseverance, hard work, and the commitment to making a meaningful impact. I feel privileged to invite the alumni of this institution, Dr. Tausif Ahmad Ganai IAS, who will come on the days and to give us an inspirational thought to the future generation. मसाइल में उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत है, मसाइल में उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत है, मुझे मायूस होकर सररूबू होना नहीं आता, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ और लोग नादां समझे कि किश्ती भंवर में है. प्लीज वेलकम डॉक्टर बख्शा. Worthy ADC sir, respected principal sir, ex-principal sir, members from the civil society and distinguished faculty, all the students,
Assalamu alaikum and good afternoon to everybody. First of all, it's my pleasure to be here. Having been an alumni and student of this institution and then being here again after qualifying this exam gives me an immense pleasure. So I'm really grateful for the contribution this institution has contributed to my journey as a student here. So once again, really grateful to the teachers, the institution and the whole administration of this institution. Most of the things have already been discussed by the most visionary personalities present here. They have told you what you need to do and how you need to choose your path and then give efforts. So as you can see the dawn and be successful in your goals. तो मेरा personally I think मेरा यहाँ आने का जो main purpose है that's to inspire you people, because I have been a student of this institution. I have done my basic schooling, my primary schooling from a government school of my own village. Then afterwards I moved to Ajad Public Schools. Then I came here for my 11th and 12th classes. Then afterwards I pursued my graduation in Bachelor's of Veterinary Science, that too from Scotch Kashmir. So there's been minimal role of private institutions in all of this and this whole journey. So the basic purpose of me being here is to inspire you people that it's not a big deal if you choose to dream. It's not a big deal for you to conquer it, as long as you people are willing to put in efforts with utmost dedication. That's what is needed. Let me tell you, I have been a student of this institution. I have seen that some students here, they don't come to the classes. यहाँ पे admission होता है, but they don't come to the classes. But मैं अपना बताऊं, I have been a regular student of this institution. 2 साल के लिए, I also used to go for tuition classes. I had my tuition classes in Avantipura. In morning I'll go for tuition classes, then I'll come to school. Then in the evening, उसके बाद फिर से मैं tuition classes जाता था. But I would be present in the classes regularly. मेरी कोई shortage नहीं थी attendance में. तो अब इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है आपकी जर्नी में. स्कूल आना, क्लासेस अटेंड करना. एक तो यहाँ पे जो आपके टीचर्स है, they are great personalities in their own subject, experts. एक तो उनकी आपके पास guidance आती है. Second important thing is it inculcates a discipline in your life, which is very much needed for qualifying any competitive exam. तो अभी जो बातें हो रही थी कि we're talking about UPSC, that's the toughest examination in the country, more so in world also, one of the toughest examinations. But ये जो tough examination है, ये किस sense में है? It's not something that you will be asked to study some rocket science, फिजिक्स के मेटाफिजिक्स पढ़ लो, वो सब चीजें वहां पे नहीं पढ़नी है. आप नॉर्मली हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कोई जियोग्राफी पढ़ रहा है, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, कोई नॉर्मल साइंस टेक पढ़ रहा है. तो these are the things you will be required to study there also. But what makes it tough is the level of competition. अभी जो हमारी कंट्री में लेवल ऑफ कंपटीशन है, हर एक एग्जाम को लेके, चाहे वो मेडिकल साइंस वाला एग्जाम है, कोई आर्ट स्ट्रीम वाला कोई एग्जामिनेशन है, या ये वाले एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशंस है, उसमें जो कंपटीशन आता है, जो इसे टफ बनाता है, दैट्स द लेवल ऑफ कंपटीशन. Let me tell you about this examination only. There are about 10 lakh students who appear for this examination annually. हर एक साल 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं IAS एग्जाम का. तो उसके बाद प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद just 14,000 people, 14,000 or around 20,000 people write means. 10 लाख में से just 20,000 लोग तक इसका सेकंड स्टेज जो है मीन्स वो एग्जामिनेशन लिखते हैं. और वहां से निकले हुए खाली 2,700 स्टूडेंट्स दे अपीयर इन इंटरव्यू. और 2,700 students which appear in interview, out of those this year around 950 students were recommended. So you can see the level of competition. Ultimately, from around 10 lakh people who had appeared earlier, just 950 students were recommended. तो
मैं यही बोल रहा था कि जो लेवल ऑफ कंपटीशन है दैट मेक्स इट टफ, नॉट व्हाट द सब्जेक्ट मैटर व्हिच यू हैव टू स्टडी, दैट्स नॉट टफ। सो उस सेंस में आपको ओवरवेल्म नहीं होना है, ठीक है। तो जो अभी एडीसी सर भी बोल रहे थे, अब आप जो भी सब्जेक्ट चूज करो, किसी ने आर्ट सब्जेक्ट चूज किया, किसी ने साइंस सब्जेक्ट चूज किया, किसी ने कॉमर्स सब्जेक्ट चूज किया, अभी के जमाने में जिस लेवल का कंपटीशन है, मीडियोकर एफर्ट्स नहीं चलेंगे। इफ यू आर गोइंग बाय योर एवरेज एफर्ट्स, तो नॉर्मली व्हाट विल एक्सपेक्ट इज आपका जो रिजल्ट होगा दैट विल बी एवरेज, वो भी एवरेज ही होगा। तो what is needed is you need to excel in whatever career, in whatever path you have chosen, you need to excel in that। आपको उसको एक परफेक्शन की तरफ लेके जाना है, आपने उसमें जितना हो सके उतनी मेहनत करके उसमें आपने बहुत एक्सेल करना है, तो आपके लिए फिर कंपटीशन उतना डिफिकल्ट नहीं रहता है। Like if you, for example, if you choose to pursue civil services, आप स्टेट सर्विसेज या इस यूनियन सर्विसेज में आप एंटर करना चाहते हैं, तो एकदम अगर आपने ये ऐसा सोच लिया, तो all of a sudden you will shift your gears, you will start giving in efforts। और अगर आप ये steadily और perseverance के साथ अगर आप continuously ये efforts दे रहे हो, तो you will see कि फिर जब इंसान पीछे देखता है, तो फिर ये जो बातें हो रही होती है कि बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम है, तो वो बिल्कुल आपको लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं है, just because of your own efforts। आप ऐसे एग्जामिनेशंस में आप बहुत सारे स्टूडेंट्स देखोगे जो just for the sake of writing this examination, they are a part of it without giving efforts उस लेवल के। तो वैसा नहीं करना है अगर आप कोई सा भी पाथ चूज करें। बट अब मेरा ये है कि I choose this path, but it's not necessary everyone will go into this path. We need people who are very much expert और जो एक्सेलेंट हो अपने अपने फील्ड्स में, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, इंजीनियरिंग फील्ड में हो, आर्ट्स वाले फील्ड्स में हो। तो आप वो अपने उसके लिए आपको क्या करना है, अब इंस्पायर होना इज ओके, बट फिर आपको अपने इंटरेस्ट को थोड़ा इवैल्यूएट करना है। लाइक वेयर यू वांट टू गो, आपके इंटरेस्ट कहाँ है। कोई ऐसी चीज चूज नहीं करनी है जहां आप बोर हो के फिर वो बीच में ही छोड़ दो। तो लाइक अगर समवन आउट ऑफ यू हु इज एम्बिशियस एंड इंटरेस्टेड इन मेडिकल साइंस, वो परस्यू करे। कोई इंजीनियरिंग में, कोई आप एकेडमिक, ऐसा नहीं कोई एकेडमिक्स परस्यू करना चाहता है, कोई रिसर्च में जाना चाहे, क्योंकि वो भी एक वास्ट फील्ड है जहाँ पे ये सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे हमें बहुत ही एक्सीलेंट लोगों की जरूरत है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं कल को इन टर्म्स ऑफ गिविंग बैक टू सोसाइटी। इट्स नॉट ओनली सिविल सर्वेंट्स हु गिव बैक टू द सोसाइटी। आप डॉक्टर ले लो, एक इंजीनियर ले लो, कोई टीचर ले लो, सबसे बड़ा रोल जिनका होता है। तो ऑल ऑफ दीज पीपल ये अपने लेवल पे अपना रोल प्ले करके बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो वहां पे आप अपने इंटरेस्ट को थोड़ा इवैल्यूएट करके अपना पाथ चूज करेंगे कि व्हाट यू वांट टू परस्यू, फिर वो आप किसी भी फील्ड में करें। लेकिन वंस यू हैव डिसाइडेड दिस, एंड इसको डिसाइड करने का एक टाइम फ्रेम भी होता है। लाइक यू कांट गो ऑन, जहां तक मैंने देखा हुआ है अपनी जर्नी में अपने साथ साथ लोगों को, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी इवन अप टू कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन हमें पता ही नहीं होता हमें करना क्या है। हम ऐसे नॉर्मली कहीं पे एग्जाम दे दिया, एडमिशन हो गया तो चले गए उधर ही, ठीक है। तो फिर अल्टीमेटली ग्रेजुएशन कंप्लीट करने पे, पीजी कंप्लीट करने पे हम ऐसे ही डम स्ट्रक कि हमें करना क्या था, हम कहाँ पे आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड बी वेरी मच क्लियर इन योर हेड कि आपको परस्यू क्या करना है, आप चाहते क्या हो, आपकी इंटरेस्ट क्या है। अगर आपने राइट नाउ आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, आपने मेडिकल स्ट्रीम चूज किया, तो आपके एफर्ट्स डायरेक्टेड होने चाहिए कि कल को मेरा एडमिशन किसी मेडिकल कॉलेज में हो। अगर किसी ने ये सोच के कि मैं सिविल सर्विसेज परस्यू करना चाहता हूँ, ये सोच के उसने आर्ट स्ट्रीम चूज किया अभी, तो फिर ऐसा नहीं कि आप नॉर्मल ऐसे एफर्ट्स डाल के फिर वो कर पाओ। तो अभी से लाइक ड्यूरिंग योर 11th एंड 12th ओनली यू नीड टू पुट इन दोस एफर्ट्स, बिकॉज अल्टीमेटली आपने भी देखा होगा अगर कोई सिविल सर्विस क्रैक करता है तो अल्टीमेटली विल बी सेइंग आप 6 से लेके एनसीईआरटी फिर से रिवाइज करो। दैट मीन्स आप जिस स्टेज पे हो, ये एक क्रिटिकल स्टेज है, एक बहुत ही क्रूशियल स्टेज है जहां पे आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा वेयर यू वांट टू गो। तो एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। आप ढूंढो आप में सलाहियत किस चीज की है, एप्टीट्यूड कौन सा है आपका, आपके इंटरेस्ट क्या है, तो उसी अकॉर्डिंग एक पाथ चूज करना है, गोल चूज करना है, और फिर आपके अभी से उस गोल की तरफ, उस एम की तरफ आपके बहुत ही कमिटेड और डेडिकेटेड एफर्ट्स होने चाहिए उसकी तरफ। तो जब आप ऐसा करोगे तो यू विल सी कि आपके लिए कोई भी
गोल, कोई भी एम अचीव करना, इट वोंट बी दैट डिफिकल्ट, ओके। लेकिन उसके लिए एफर्ट्स डालना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात थी। नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जब भी हम कोई सा मतलब लाइक जो लोग हम ऐसे नॉर्मली विलेज आप यहाँ से आते हैं, ऐसे गवर्नमेंट स्कूल इंस्टीट्यूशन से पढ़ के, या हमारा गांव वाला बैकग्राउंड होता है, तो हमारा लेवल ऑफ एक्सपोजर नॉर्मली कम होता है अबाउट द थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग इस लेवल पे। अब वो कम हो रहा है ड्यू टू दी जो इन्फोडेमिक चल रहा है, इंफॉर्मेशन हर तरफ है, सोशल मीडिया एंड ऑल, बट स्टिल वी लैक दैट एक्सपोजर। तो उसको ब्रिज करने के लिए हमें क्या करना है? अर्ली ऑन वी नीड मेंटरशिप। आपके इलाके में या आपके स्कूल में, जैसे अभी हम यहाँ स्कूल में आए, या आपके इलाके में कोई ऐसा होगा, जैसे कोई अभी मेडिकल परस्यू करना चाहते हैं, उसके इलाके में ऑलरेडी कोई ऐसा होगा जिसने नीट क्वालिफाई किया होगा, तो उसको अप्रोच करना, उससे सजेशंस लेना, दैट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। उसकी वजह से आपका जो टाइम है जो आप इस एग्जाम को देना चाहते हो वो कट डाउन हो जाएगा पास होने तक का टाइम, ठीक है। तो आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, उस फील्ड में अगर आपको लगता है कोई अकम्प्लिश्ड बंदा है जिसने इसमें कुछ किया हुआ है, तो उससे सजेशंस लेना, उससे गाइडेंस लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अभी के टाइम में, ठीक है। और फिर एक्सपोजर के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सोशल मीडिया, इंटरनेट, AI, चैट GPT वगैरह ये सब यूज कर रहे हो, तो इसको ऐसे फ्रूटफुल मीन्स के लिए भी आपने यूज करना है। कि लाइक अभी मैं बताऊं, अगर कोई आर्ट्स वाला लड़का है जो चाहता है कि मैं केस के लिए प्रिपेयर करूं, ठीक है, तो ये सब चीजें उसको यूज करनी है। उसको देखना है ये एग्जाम है क्या, इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, मुझे कैसे प्रिपेयर करना पड़ेगा, इसके लिए रिसोर्सेज क्या यूज करने हैं मैंने। तो उन सब चीजों के लिए अगर आप ये यूज करोगे तो आपका एक्सपोजर लेवल एकदम से वो जो गैप है उसमें वो फिल हो जाएगा यूजिंग दीज रिसोर्सेज ओनली। तो वो इंपॉर्टेंट है, आप उसको यूज करो एक राइट डायरेक्शन में। तो और एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब आप तब करोगे जब आपके माइंड में पहले ये आएगा कि मुझे ये चीज अचीव करनी है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू ड्रीम बिग। नॉर्मली व्हाट वी डू इज वी फेल टू ड्रीम बिग बिकॉज वी आर ओवरवेल्म्ड। लाइक किसी ने नॉर्मली जो हमारे यहाँ नोशन है कि नीट को लेके ये नोशन होता है कि इट्स रियली डिफिकल्ट टू क्रैक। ऐसे ही सिविल सर्विस वाले एग्जामिनेशन बहुत ही ज्यादा टफ है। तो अगर आप ये नोशंस लेके चलेंगे माइंड में, तो ये ओवरवेल्म कर देता है बंदे को, वो पहले ही छोड़ देता है कि नहीं मेरे से नहीं होगा, इसके लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा टफ है तो हम नहीं करेंगे। तो वो नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रीम करना। यू नीड टू ड्रीम बिग। एज द सेइंग गोज कि वेल बिगन इज हाफ डन। अगर आपने ये माइंड में बिठाया मैंने ये चीज करनी है, तो उसके तलाश में आप थोड़ा सा निकले तो आपका आधा काम वहीं पे हो गया, फिर आपको रास्ता मिल जाता है, ठीक है। जब आप किसी चीज को परस्यू करने निकलेंगे, फिर आपके सामने रास्ते खुल जाते हैं, आपको मेंटरशिप मिल जाती है, तो आपके लिए फिर रास्ते इजी हो जाते हैं। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, अभी जो हम पहले टाइम में होता था कि किसी कोचिंग में जाना है, वहाँ इतने पैसे लगेंगे या मेरे पास रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, अभी जो उस एजुकेशन का, इंफॉर्मेशन का इतना डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है टेक्नोलॉजी की वजह से। लाइक आप बेस्ट से बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोर्स आप ऑनलाइन ले सकते हो, वो भी मीगर अमाउंट में, ठीक है। तो उस लेवल से भी आपके लिए एग्जाम टफ नहीं, इजी बना है, ठीक है। ऑल यू नीड टू डू इज, पहले आपने यूनिटी बी वेरी मच क्लियर इन योर हेड रिगार्डिंग व्हाट यू वांट टू परस्यू। सेकंड, आफ्टर यू हैव चोजन योर पाथ, योर गोल, then you will have to be dedicated or committed in putting in efforts towards that direction. ये बहुत important है। और right time पे या time पे regular intervals पे you will seek mentorship from the people around you, your teachers या someone from your locality। उनसे mentorship लेके आपने continuously उस direction में रहना है। And then most important thing, while you are walking towards your goal या आप इस जर्नी में हो, तो it won't be a smooth ride, ठीक है, it won't be smooth। तो आपको उसमें चैलेंज फेस करने पड़ेंगे। कोई दर्द फिर से हरा हुआ, मैं सोच रहा था वो बेवफा मेरे हाफिज़े से जुदा हुआ, यहाँ खुशबू की रफाकतें न तुझे मिली न मुझे मिली, वो चमन जिसमें गुरूर था न तेरा हुआ न मेरा हुआ। प्लीज वेलकम
the principal of the institution further. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم. कामयाबी इत्तिफाक नहीं इंतखाब है. कामयाबी इत्तिफाक नहीं इंतखाब है. लगन मेहनत कुर्बानी का ये निसाब है. लगन मेहनत कुर्बानी का ये निसाब है. Respected dignitaries, honored guests, my dear colleagues, and very lovely and very dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. And warm and respectful good afternoon. ये आज जो यहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है, मजलिस हो रही है, महफिल हो रही है, इसका मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि जो हमारे ये विक्टोरियस लोग हैं उनकी कामयाबी का हम यहाँ जश्न मनाएं, इतना ही मकसूद नहीं है, बल्कि उस कामयाबी के पीछे जो उनकी लगन है, जो उनकी मेहनत है, ऐसे होनहार बच्चों का, ऐसे होनहार स्टूडेंट हो तो फिर क्या कहनी. मैं भी समझूंगा, मुझे भी लगता है कि मेरी जो भी जिंदगी है उसमें अगर कोई सौगात रहेगी, अगर कोई बड़ी बात होगी तो वो यही बात होगी कि शायद उस क्लास में जहां मैं कभी पढ़ाता था वहां कभी तौसीफ साहब जैसे स्टूडेंट भी रह चुके हैं. मैंने अंग्रेजी का एक कोट सुना था, कहीं देखा था, विक्ट्री हैज 1000 पेरेंट्स बट डिफीट इज ऑर्फन. उसका भी यहाँ पर जिक्र होना मकसूद है. जब हमारे हजरात जैसे एडीसी साहब, तौसीफ सर, डॉक्टर अहंगर साहब जब ये यहाँ पे स्पीच दे रहे थे तो मैं यहाँ पे सोच रहा था कि हमारा जो इस प्रोग्राम का जो मकसद था, जो उसकी कीमत वसूल होनी थी, जितना हमने सोचा था उससे भी ज्यादा इसकी कीमत हमने वसूल की. डॉक्टर अहंगर साहब की शख्सियत ये सबूत हैं, ये ऐसी शख्सियत है जिससे इस इलाके की पहचान बनी है. हमारे इलाके की पहचान है डॉक्टर अहंगर साहब, जिन्होंने अनगिनत बीमारों को उनके कल्ब को, उनके दिल को, उनके दिल की धड़कनों को दवाम बख्शी और जो उसके अलावा एक काबिल फख्र एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे. ये हमारी खुशनसीबी है कि वो इस स्टेज पे हैं और हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि हमें उनके बगल में बैठने का एजाज मिला. जहां तक जो गेस्ट ऑफ ऑनर है हमारे तौसीफ साहब, आपको क्या बताऊं मैं जज्बात, जब मैं इस स्टेज पे आया तो मुझे जज्बातों ने मगलूब कर दिया. मैं आपसे अपनी कैफियत क्या सुनाऊं कि जब
हम ये कह रहे थे, जब हमारे स्पीकर ये कह रहे थे कि तौसीफ साहब हमारे इसी स्कूल के स्टूडेंट हैं, और 2014 में जब मैं यहाँ पे वैसे के टीचर काम कर रहा था तो ये उस वक्त यहाँ पर स्टूडेंट रहे। जब से मैंने किसी भी इदारे की जो सरबराही का फरीजा जो मेरे कंधों पे रखा गया, तब से मैंने कोशिश की कि ऐसे प्रोग्राम हम जरूर करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो इन्होंने बताई ये सारी चीजें किताबों में नहीं मिलेंगी। इसके लिए सदियां चाहिए। जो अनमोल बातें यहाँ पे उन्होंने बहुत ही कम टाइम में आपको सिखाई, आपको बताई, मुझे यकीन है कि इनसे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। मुझे यकीन है कि अगर डॉक्टर अहंगर साहब जैसी शख्सियत पूरे कश्मीर में एक ही है, और अगर डॉक्टर तौसीफ साहब जैसी शख्सियत जिन्होंने IAS क्वालिफाई किया, पुलवामा की वाहिद पहली शख्सियत है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आइंदा जमाने में इसी स्कूल से बहुत सारी ऐसी शख्सियत निकलेंगे जिनको आज इस डाइस पे प्रेरणा मिली, इंस्पिरेशन मिली आप हजरत से। वसवसों ने डरा दिया, वो कदम कदम पे बहक गई। मिश्रा तबसर प्लीज। दो बच्चे जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है, आज हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जो हमारे इसी स्कूल से जो निकला हुआ शागिर्द तौसीफ अहमद गनाई साहब, जिन्होंने हाल ही में IAS इम्तिहान क्वालिफाई किया है, वो भी इसी स्कूल से फारिग हुआ है। हमने देखा है कि जो तौसीफ अहमद गनाई है वो इसी स्कूल से फारिग हुआ, और इस स्कूल की आपको पता ही, इस स्कूल की अपनी एक लेगेसी है। हमने देखा कि इस स्कूल ने बहुत बड़े बड़े इंसानों को पैदा किया, जिसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे कितनों का हम नाम यहाँ लेंगे। हम देखते हैं कि डॉक्टर AG अहंगर जो एक्स डायरेक्टर सिक्किम है, इसी स्कूल से फारिग हुआ, और बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो इसी स्कूल से पैदा हुए हैं, और इसी स्कूल की अपनी एक लेगेसी। और इसी स्कूल में हमने देखा कि तौसीफ साहब भी इसी स्कूल से पढ़ा है, और फिर हमने देखा उसने IAS क्वालिफाई किया। ये हमारे लिए कितनी अजीम बात है और कितनी शान है। मैं समझता हूँ कि इस स्कूल की जो इमारत है वो आज इस स्कूल की बहुत बड़ा इम्तिहान जो तौसीफ साहब ने क्वालिफाई किया है वो भी इसी स्कूल से है। और इस स्कूल की जो इमारत है, मुझे लगता है कि आज उसका छत पूरा मुकम्मल हुआ है। मुझे लगता है स्कूल थी लेकिन छत उसका नहीं था, लेकिन उसने आज इस स्कूल को छत बख्शा, और इसलिए हम ये मुबारकबादी के मुस्तहिक है। मैं आप बच्चों को बताना चाहता हूँ कि जो ये पढ़ाई होती है, जो ये मेहनत होती है, जो लगन होती है, या किसी चीज को हासिल करने के लिए जो लगन होती है, उसके लिए कोई शॉर्टकट मेथड नहीं होता। उसके लिए मेहनत, उसके लिए लगन, और उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। और उसके लिए आप जैसे असातिज़ा किराम की मेहनत और असातिज़ा किराम का मानना जो है वो जरूरी है। हमें अपने अंदर एक गोल सेट करना है। वी हैव टू थिंक बिग। अगर हम सोचेंगे नहीं बड़ा तो हम कर भी नहीं सकते फिर बड़ा। हमें बड़ा सोचना है। वी हैव टू चूज ए डेस्टिनी, वी हैव टू राइट ए माउंटेन, वी हैव टू क्लाइंब ए माउंटेन हियर। और हमारे दिमाग में जब ये बात होगी कि आई हैव रीच ऑन द टॉप ऑफ द पीक एंड वी विल गो देयर। अगर जज्बा नहीं होगा, जोश नहीं होगा, दिमाग में वो गोल सेट नहीं होगा, हम उस चोटी पर पहुंच नहीं पाएंगे। हमारे लिए ये खुशी का मौका है, सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी, कि पहली बार मैं उस स्कूल में गया जिस स्कूल से इतनी बड़ी हस्ती निकली होगी। माशाअल्लाह, ये हमारे लिए इंशाअल्लाह मशल्ला बनेगा। ठहरा न कर सका मुझे जलवे दानिश फरंग, कि सुरमा है मेरी आंख का खाक मदीनो नजफ। Since I have been invited here to the dais
to propose to present my vote of thanks to everyone who contributed for this successful event. I have been inspired by many dignities, and topmost of them is Ahangar Sir's life. It is my pleasure, it is my privilege to thank former Director Sikim's, former Director Amos Gilan, Dr. Ahangar Sir. He has imparted us the grace. He has come here. उसने कितना कीमती वक्त ये मुझे मालूम है छोड़ के यहाँ हमारे लिए यहाँ आए. I highly thank you, sir. I highly thank Mr. Taslim sir for his valuable time. He has come here to grace this occasion. Equally, I am highly thankful to Attar sir. Attar sir के साथ थोड़ा ही मैंने टाइम दिया, but I followed him. क्या मैं कहूँ? वो तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं है. I highly thank Mr. फयाज sir. आज की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके अंडर मैं कहता हूँ मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है. I am highly and equally thankful to all my colleagues, especially the HOI, Farooq sir and his team for their hard work who have made this event a successful one. Equally, I am highly thankful to all those students who have cracked the prestigious exams like NEET and all that. And finally, lastly, not leastly, I am highly thankful to my lovely followers, little kids, blooming buttons, little angels, my little angels. आप हैं तो हमें, आप नहीं तो हम कहीं नहीं. We are your today, you are our tomorrow. आप नहीं तो हमारा कल नहीं. बहरहाल इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं आपसे रुखसती लेना चाहूँगा. अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Student here, Asra Jan, he has to say something. Here's a question, please. Dare to ask. Assalamualaikum everyone. Sir, my question is, when you were already well established in your chosen field, then why you choose to pursue only IAS as your career path? Okay, actually the story is somewhat different. ये सिविल सर्विसेज परस्यू करना ऑब्वियसली मेरा पहला एम था, इवन बिफोर ज्वाइनिंग माई कॉलेज. तो उसकी वजह से पाथ ऐसा बना कि ऑब्वियसली यू नीड टू पहले कंप्लीट योर ग्रेजुएशन इन ऑर्डर टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन. सो मेरा ऑलरेडी स्ट्रीम यहाँ पे मेडिकल था, मैथ भी साथ में. तो आई अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन मैंने दिया. तो आई रिमेन शॉर्ट ऑफ फ्यू मार्क्स, आई कुडंट क्वालिफाई, एंड देन आई अपीयर्ड फॉर दिस एग्जाम, आई क्वालिफाइड. सिंस आई डिडंट वांट टू वेस्ट माय टाइम, ऐसे ईयर्स ड्रॉप नहीं ले सकता था मैं उस टाइम पे, बिकॉज personally I was not interested in medical or any other path. This was very well in my mind before these years. So I simply chose that path to complete my graduation. और फिर graduation complete करके obviously you always want कि आपके पास कोई job opportunity हो तो you will just grab it. So I just appeared for the examination, I qualified it and became a vet surgeon. But simultaneously I did not let go of my actual dream. So I continued to pursue it. तो एक शहर इस मंच से जा रहा है, याद रखिएगा प्लीज, इसको आप नोट कीजिए. हम तो चराग अव्वल शब है, हम तो चराग अव्वल शब है, शाम डले हम बुझ जाएंगे. हम तो चराग अव्वल शब है, शाम डले हम बुझ जाएंगे, लेकिन तुम सब आखिरी शब तक दीप से दीप जलाते रहना. सो प्लीज वेलकम फॉर द सेकंड सेशन, a brief session by Sabza sir. Please welcome him for that. HSS Noorpura, are you ready for grand health station presentation ceremony? मेहनत इतनी खामोशी से करो तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे. मंजिलें हमेशा उन्हीं को मिलती हैं
जो मंजिलों को तलाश करते हैं। Today we gathered here not to just distribute awards, but to celebrate stories of discipline, late night study, and quiet determination. Theme is merit recognized, dreams ignited. Toppers are not born, they are made. The felicitation ceremony is our way of saying, we see your efforts. Behind every mark sheet is a student who chose books over distractions, revision over rest, and consistency over shortcuts. This institution is flourishing day by day under the prime guidance of our principal, Mr. Fayaz sir, and by the efforts of all the teaching staff members and by the efforts of non-teaching staff members. We have trained teachers here. We have the guidance of senior staff members, Mr. Farooq sir, Mr. Zahur sir, Mr. Riyaz sir, Mr. Shafi sir, Mr. Zahid sir, who are continuously guiding young staff members about how to inculcate values among the students. Without wasting much of the time, I may simply say to you that this institution is flourishing day by day. Lubna Ejaz is not present here. Her father is present here. I humbly request our father to come on the dais and collect the trophy, memento from Fayaz sir, from our principal Fayaz sir. NEET qualifier. See what when a student works hard, what kind of respect his parents get. Then we have another NEET topper, Muskan Hamid. Muskan Hamid may come on the dais and collect the trophy from Mr. Mohammad Shafi sir, lecturer chemistry. Mr. Mohammad Shafi sir to hand over memento to Muskan Hamid. Then we have another student, Sayyid Azra Nazir. Sayyid Azra Nazir. She also qualified NEET. We also have mementos for our guests who were present here. I think it was a grand ceremony today here. Our students who were continuously asking us in classroom, sir, how can we excel in our career? I think today they got the excellent tips from our experts. And I hope that they will work on these tips and inshallah they will see the bright future. First of all, we have a memento to be presented to our chief guest, Professor Dr. A.J. Angar sir. Mr. Fayaz Ahmad Mir, the principal of the institution, will hand over the memento to Dr. A.J. Angar sir. Big round of applause for Dr. Angar sir. Big round of applause from all the students. I humbly request our adjoint, Mr. Farooq Ahmad Wani sir, to hand over the memento to ADC Avantikora, Mr. Mushtaq Ahmad Noor sir. Our guest of honor, Mr. Tawseef sir. We were seeing that the students are qualifying IAS from other districts, but Tawseef sir gave us the opportunity to see how the students and this student from our district can qualify IAS. Mr. Tawseef sir is the live example of that, and I request Farooq sir to hand over the trophy to Mr. Tawseef sir. Farooq sir to hand over memento to Mr. Tawseef.